Sarika ji, can you put on your video? Can you put on your video? Okay. Yeah. Poonam ji, you have some question? You have raised your hand. Poonam Raval, if I'm not wrong. Dilip ji, yes, we have sent link at a very short time. Reason being, this is an extra class, and we are trying to accommodate according to the schedule. Okay, this is an extra class, extra special class, I could say. वॉल्यूम, सबको वॉल्यूम का इशू हो रहा है क्या? ओके, किसी को वॉल्यूम का इशू नहीं हो रहा है, और जिनको वॉल्यूम का इशू हो रहा है प्लीज लॉग आउट एंड लॉग इन. या yes, Misty ji, you have any? Payal ji, the class would be, I'm hoping it for 1 hour, but questions आ रहे हैं, then it might extend, but 1 hour का तो class रहेगा ही रहेगा. Misty ji, you have any question? Okay, so I think we are good to go. Yeah. So yes. Okay, so today's class is, okay, we have still students joining in, but I can't wait for more class because reason being, yes, Parul ji, I'm waiting for us couple of students to join in. Okay, there are still joining the people. Okay. This is a special class for many batches, so I'm just waiting for a couple of minutes to join so that the students can join in, yeah, so today's class will be about practical assessment of Prakriti. Okay, practical Prakriti assessment. Lot of you have questions regarding Prakriti, कैसे assess करना है, हम लोग Prakriti assess कर रहे हैं तो वो सही है या गलत है, वगैरह वगैरह. And at the same time we are also having difficulty in assessing the Agni. हम लोग बार बार अग्नि के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत लोगों को ये दिक्कत हो रही है कि अग्नि को कैसे असेस करें. ओके, सो टुडे आई विल बी टेकिंग अ बिट, आई वुड से, आई मीन लाइक, ये क्लास होने के बाद आप एक्सपर्ट तो नहीं बनोगे, बट यू विल हैव सर्टेन आइडिया. थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा, थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा, थोड़े डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ओके, नाउ फॉर टुडेज क्लास, मतलब ये प्रकृति असेसमेंट के लिए आई एम चूजिंग सारिका जी. रीजन बीइंग, शी वाज द फर्स्ट वन टू जॉइन द Zoom link. Okay, so that is the only reason. Randomly choose किया है, तो we didn't know because we have more than 200 students here. तो किसी को भी randomly pick करना was not feasible. So the person who joined first was Sarika ji. So we have picked her. Okay, no partiality, no bias, nothing. I personally don't know Sarika ji. Okay. हाँ, बाद में ऐसे भी होना चाहिए. Okay, now, okay, here we go. Sarika ji, can you hear? Yes, ma'am. Okay, good. Now first हम लोग जब भी कोई हमारे पास क्लाइंट आएगा, what are the things we need to ask? सारिका जी, आपका full name? Sarika Manik Tahala. Okay. What is your age? 46. Where do you stay? Gurgaon. Gurgaon. You have been staying in Gurgaon right from birth, or you have recently? After marriage. After marriage. Since how long you have been staying in Gurgaon? It's been 20 years. 20 years. And before Gurgaon, where were you staying? Chandigarh. Chandigarh. Okay, so now you see why I'm asking, place of stay. मैं क्यों stress कर रही हूँ? Reason being, Deshaja. Deshaja as in regional, geographical region, because every place. For example, there is one student, I think Navpreet or Navneet, some student is there.
she was staying in the north and recently she has shifted to south. Okay, sorry, I'm giving some examples, don't mind, because this is just for practical session. So now you see there is drastic variation in the geographical or regional place. That is also affecting, that also affects a lot. So now Sarika ji is from Chandigarh, but she has shifted to Gurgaon. So again, it is not that major difference in place. Okay, major difference apart from pollution and stuff, but not major difference. Okay, so this is one point. Now age, I asked why again 46. So is she is nearing to Vata Jakala or Vruddhavastha. Again, we are seeing here. These are the things. These are the pointers I could say. Okay, so ये basic pointers हो रहे हैं. So name, okay, नेम से आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कौन से रीजन या फिर कौन से रिलीजन, या बिकॉज अगेन इन इंडिया वी हैव अ लॉट ऑफ रिलीजन एंड ट्रेडिशनल कल्चरल जो है वो बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं. तो फुल नेम हम लोगों ने फुल नेम सॉरी आई फॉरगॉट सारिका मानिक चाहला. मानिक कहला. ओके, अरोड़ा कह लीजिए. अरोरा. ओके, अगेन सो मोर ओवर पंजाबी हिंदू इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yes. Okay, so again, so Punjabi Hindus. So now we have an idea that what kind of, हमको basic, जब surnames आप पूछते हो, नाम और surnames आप पूछते हो, तो आपको basic idea आ जाता है कि कौन से religion या caste से belong करते हैं. तो उनका food habit, it's nothing to do with religion, ना community religion उसके basis पे नहीं, food habits के basis पे. Because again Punjabis, they are rich with all foodies. All Punjabis are foodies. My personal favorite cuisine is Punjabi. Okay. So Punjabi cuisines are very, very rich, creamy, very, very oily, very, very ghee भर भर के खाते हैं. Okay, so you can see their body structure is again very big. उनका बोन स्ट्रक्चर आप बोलो, बॉडी स्ट्रक्चर आप बोलो, वो बहुत बड़ा रहता है, बहुत हेल्दी रहता है, उनका लाइफ स्पैन बड़ा रहता है, उनका स्किन जो रहता है बहुत बहुत ज्यादा ग्लोई, ऑयली, दैट वो रहता है. So these are the basic things. Within 3 questions, what all we got to know. Correct? Clear? Till now clear? All clear? So within 3 questions, 3 questions में ही what all we could judge, what all we could assume. Correct? Done. Now यहाँ पे generalized हो गया. So we are, हम लोग जो generalization या फिर आप बोलो हम लोग जो चीजें हैं वो थोड़ा सा cut short कर रहे हैं. So Sarika ji is a Punjabi. She is in mid age. Okay, 46 है तो she is nearing to वृद्धावस्था आप बोलो, या फिर she is turning into Vataja. Okay, this is one thing. Now again what we saw, geographical region. So again geographical region, she was in Chandigarh. तो again the regional area जो है वो बहुत ज्यादा you could say पित्तज प्रकृति वाला है. पित्तज प्रकृति वाला again in the sense they are prone to more hyper acidity, more spicy food. ऐसे वाले चीजों पे they are more focusing on that. Correct? चटपटा खाना. So again उनका अग्नि तीक्ष्ण होता है. Correct? So these are based on just these 3 questions. We assumed so many things. Correct? Clear? Clear? Can I go further? Okay, good. Chalo. Okay, we have Dipti ji. Yes. Quickly. मैम प्लेस से कैसे पता चला कि पित्तजी प्रकृति है? देखो अभी सॉरी चंडीगढ़ एंड अगर आप चंडीगढ़ और दिल्ली का आप ले लो तो वहां पे क्या होता है, उनका रहन सहन जो है वो बहुत तीक्ष्ण रहता है, वर्सटाइल, वॉलेटाइल. पंजाबी पीपल हैव अ वेरी वॉलेटाइल नेचर. अगेन व्हाई? बिकॉज द पित्त प्रकृति, उनका जो खान पीन है वो सारा चटपटा है, बहुत स्पाइसी है. ओके, सो अगेन उनका अग्नि जो है, see based on the regional thing we are trying to assume things. It is necessary नहीं है कि वो लोग वैसे ही रहेंगे. It is a general conception. Again वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा dry area है. If you see the area, it is more of a dry. You could say water sources थोड़े से कम रहेंगे वहां पे. Delhi and Chandigarh, if you see water sources. अनुपजांगल साधारण देश, हम लोगों ने 3 types of देशास देखे. Correct? So that's why I'm telling you. Sangeeta ji, I'm not considering the whole of north. I'm just considering the place where Sarika ji is staying.
इट इज चंडीगढ़ एंड फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिफ्टेड टू दिल्ली. अगेन यहाँ पे वाटर सोर्सेस थोड़ा कम होता है, तो जांगल और साधारण के बीच में ये प्लेसेस आते हैं. ओके, जांगल और साधारण के बीच में ये प्लेसेस आते हैं. अगेन प्लीज, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटेडली टेलिंग, गो बैक टू योर बेसिक्स. बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रकृति सब एसेस करने के लिए. ओके दीप्ति जी, आई थिंक यू हैव एन आइडिया. इफ एट ऑल नॉट, you need to go back to the basics. Okay, I'll try. yeah, if you have any questions, then you can just send it to the coordinator. I'll help you out. Okay. Okay, thank you. So see, these are all guidance hai abhi aapko, so you just get an idea how you are assessing. So that is why I repeatedly keep telling your basics are very very important. Tridoshas, Agni, dinacharya, ratricharya, ye sari cheezein. Yes, Misty ji, you have any question? Please try to avoid questions in between, please. Yes. Yes, ma'am. Judge the Kaf Prakriti. Tell me the description. See, we are not talking about Kapha Prakriti. We are still starting with the Prakriti, how to assess. Okay? Okay. Please don't ask the questions not related to what I am talking. Okay? Please don't ask questions related to what I am talking. Repeatedly, I am telling, otherwise I'll stop taking the questions. Okay? Now, coming back to in the three things, ये रहती हैं कहाँ पे? पहले ये चंडीगढ़ में थी, फिर अभी उन्होंने रिसेंटली गुड़गांव में शिफ्ट किया है. ओके, अगेन दीज आर वेरी रिच, यू कुड से. उनका वो जो एरिया आता है, वहां पे एरिया क्या है, वाटर सोर्स कम है, तो या तो फिर वो जांगल प्रदेश में आएगा या तो फिर साधारण प्रदेश में आएगा. जांगल प्रदेश इज वेयर इन वाटर सोर्सेस आर कम, द रीजन इज वेरी ड्राई. Okay, dry and extreme hot climate. Okay, these are the Jangal Pradesh का. और साधारण is moderate, वो ड्राइनेस भी मॉडरेट रहता है और मार्शी. नेक्स्ट थर्ड प्लेस इज द आनुपदेश. आनुपदेश इज योर रिच वाटर सोर्स मार्शी लैंड. यू नो ऑल द कोस्टल एरियाज, मुंबई, all the coastal areas, Mumbai, Goa, then you have your Kerala. These all कोंकण एरियाज जो आते हैं, कोंकण लाइन, ये सारा मार्शी लैंड या फिर आनुप्रदेश में आता है. ओके ओके, नाउ वी आर डन विथ ऑल दिस. नाउ सारिका जी, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन? आई एम वर्किंग एज डाइटिशियन itself. Dietitian itself. So what kind of work? It is more of a desk job, sitting on the desk. Yes. And more on the laptop, or More work on the around. laptop. ओके, सो ऑक्यूपेशन क्या है? सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री ऑक्यूपेशन है, जहां पे बहुत देर तक उनको बैठना पड़ता है. तो आपका वर्किंग आवर्स क्या है? 9 to 6. 9 to 6. Any breaks in the between? Only half an hour. Half an hour. So what we assume, इससे हमको क्या पता चलता है? उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक ही जगह पे बैठते हैं. सो मोर प्रोन टू व्हाट? वातज डिसऑर्डर्स. वातज डिसऑर्डर्स जहां पे स्पाइन पे, लेग्स पे उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है. ओके, एंड बेली फैट, मोर ऑफ बेली फैट, पाउचेस, stomach pouches, very common. So these are the things which we are based on the 4 things we are assuming. तो इतने सारे लोग, इतने सारे चीजों को हम लोग अभी we are अब आप बोल सकते हो कि हम लोग उसको कम कर रहे हैं, या फिर पैरामीटर्स है वो हम लोग शॉर्टन कर रहे हैं. ओके, yes, Misty ji, again, if at all it is related to what I'm talking. Yes. Please unmute yourself quickly. Okay, send me your question in the chat box. Okay, so now we are done with these things. Now coming to what, अभी ये हमारी चीजें हो गई. Okay, now coming to prakriti assessment. Okay, now first I always go from the hair. आपका hair, scalp. I start from the scalp and I end at the toes. Okay, what kind of hair do you have? Frizzy hair, brittle hair, rough hair, oily hair, glossy hair? Frizzy. Frizzy hair. Dry.
Misty ji, it is only for Sarika. I'm not assessing everybody's Prakriti. Okay, I'm doing only Sarika ji's Prakriti assessment. Okay, so you have frizzy hair. Okay, Little dry and frizzy. dry and frizzy. So dry and frizzy hair, so we are considering this as the Vataja Prakriti hair. Okay, Vataja hair. The hair are Vataja. How's your scalp? Clear. Not clear. As in oily scalp है, moderate scalp है, या फिर बहुत ज्यादा dry scalp है? नहीं, कभी कभी ऑयली होता है, अदरवाइज बिल्कुल फाइन, परफेक्ट रहता है, कुछ नहीं होता। How oftenly you need to take head bath? It's my actually 2 times in a week. Twice a week. अगर twice a week आप नहीं ले रहे हो तो कुछ क्या होता है? हेयर ऑयली हो जाते हैं। Okay, so now here the scalp is pittaja. How? अगर बहुत ज्यादा ऑयली है तो every other day they need to wash their scalp, otherwise they start getting itchy. Okay, अगर उनको या तो अगर वो हफ्ते में 2 बार नहा रहे हैं then it is okay. अगर वो एक हफ्ते में, मैंने उनको बोला अगर एक हफ्ते तक अगर वो नहीं नहा रही है तो कुछ हो रहा है, तो वातज प्रकृति में क्या होता है, एक्सेस ड्राइनेस रहता है स्कैल्प, तो एक हफ्ते तक भी अगर वो नहीं नहा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कफज है तो हर दूसरे दिन, क्योंकि वरना उनका स्कैल्प इतना ऑयली हो जाता है, बहुत इच्छी हो जाता है। ओके, सो व्हाट वी असेस्ड, वातज हेयर, पित्तज स्कैल्प। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, नाउ कमिंग टू फोरहेड। आपका फोरहेड, उनका फोरहेड, अगर इफ आई कैन सी हर फोरहेड इज क्वाइट लार्ज। ओके, आपका फोरहेड पहले से ही लार्ज है या फिर आपके बाल अभी जोड़े घट रहे हैं, ये लाइन जो है वो रिसीड हो रहा है? पहले से ही ऐसे है, ऐसे ही है। पहले से ही ऐसे है। ओके, सो नाउ ब्रॉड फोरहेड, फोरहेड जो है वो बहुत ब्रॉड है इनका, तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, या तो फिर वातज हो सकता है या तो फिर कफज हो सकता है। वातज में आइदर यू हैव वेरी शॉर्ट फोरहेड और वेरी ब्रॉड फोरहेड। ओके, and in kafaja it is always everything is big big big. Kafaja mein everything is big 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 big. Okay, whereas in vataja it is either too small or too big. Okay, so vataja या कफजा हो सकता है, but because she यहाँ पे फिर बाद में अगर यहाँ पे फोरहेड में छोटे छोटे बॉइल्स है, वेरी कॉमनली फाउंड इन ऑयली स्कैल्प। ऑयली स्कैल्प अगर जिनका है तो उनका फोरहेड भी जो है वो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे दाने रहते हैं। Do you have any small boils on your forehead? No. Then No. for her it is vataja forehead. Okay, उनका जो forehead है वो vataja है। Now coming to forehead, आपका forehead, eyes, please take out your glasses and come towards the screen because your eyes are not clear. Your eyes are puffy now or they have been Right now puffy. right now puffy? I was having headache actually today in the morning. Okay, so see, यहाँ पे मैं पहले उनको पूछ रही हूँ, उनके मैं ऊपर ना मुझे बहुत पफीनेस दिखाई दे रहा है, तो मैं उनको पहले पूछ रही हूँ कि आपका पफीनेस पहले से है या फिर अभी आया है। So these are the things you need to first generalize. ये पहले से है, अभी है, you have to segregate that, distinguish that. Okay. Now so now we know that she has puffiness of the eyes. Okay, puffiness of the eyes है, आपके आंख थोड़े से छोटे हो गए हैं, तो वो छोटे ही हैं वैसे। Okay, so very small eyes, then vataja. Moderate eyes, pittaja. Now mine are somewhere between moderate eyes. Okay, so my eyes are pittaja. Okay, now coming to, so she has pittaja eyes. Now coming to your eyebrows, आपके eyebrows thick है, मेरे को थोड़ा बहुत thin दिख रहे हैं। Thin है, हाँ जी, thin है। So again scanty hair, so again vataja. Okay, even you can see I have scanty eyebrows, so again vataja. In vataja we have scanty eyebrows. Aditya ji, can you come towards oh, Aditya ji miss हो गए।
आप थोड़ा सा इसके सामने आओगे क्या? ओके, सो नाउ इफ यू सी आदित्य जीज आईब्रोज, उनके थोड़े से थिक है, सो वी कैन कंसिडर दिस एज दी कफज आईब्रोज. ओके, थैंक यू सो मच आदित्य जी. I'll highlight. Okay, so this would be the better option rather than multiple. Everybody can see I have highlighted Sarika ji. Okay, so now if you see, yes, now if you see her eyes, eyes, we have said that her eyes are again Vataja. Now coming to her nose, okay, nose again is a bit broad. Again, if you see, nose is broad. So here we can consider it as Kafaja. Okay, now my nose is a bit pointed. So if you can see, my nose is a bit pointed. So this comes under Pittaja. If at all it is Vataja, it is slightly distorted. Okay. Thoda sa irregular. If you see, I have a pointed nose and very well placed. You know, not too big, not too small, and well placed, pointed. So this is Pittaja nose. Okay. Now coming to cheeks. Cheeks, if you see, they are fleshy. Sarika cheeks are fleshy and very plumpy. So again, Kafaja. Okay, so it is Kafaja. Now, if you come to the lips, okay, Sarika ji, I am sorry, but this can't be avoided. Okay, if you see her lips are again slightly moderate. They are neither too thin, neither too big. Okay, so again we consider this as the Pittaja. Please show your teeth, Sarika ji. Okay, are these your normal teeth or say, you know, replace, set, all natural? Normal. Natural. Okay, see, if you see, please show your teeth again. If you see, her teeth are slightly, you know, properly arranged, but if you see, they are slightly yellowish tinged. So now, and they are not properly, agar बहुत अच्छे से वो you know, lined up नहीं है. Okay, so this comes under Pittaja. Now, if you see my teeth are very bad. Okay, and they come under, you see, my teeth are all ऊपर नीचे बहुत खबड़ है. So these are Vataja. Okay, Vataja teeth. I have Vataja teeth. Okay. Okay, so this is how. Please show me your tongue. Okay, her tongue is slightly pale. Okay, slightly pale है. Again, slightly pale है लेकिन coated नहीं है. Okay, so this comes under again Vataja. Dryness नहीं है लेकिन slightly pale है और you know ये you could say slightly whitish लगता है, pale लगता है. So then उनका हम लोग क्या बोल रहे हैं? That she is having, so that shows that she is having Vataja, you know, tongue. So like this you can keep on segregating. इतना सारा आप segregate कर सकते हो. Okay, now coming to her face, shape of the face, it is round, you know, round and plumpy. So again, Kafaja face. Okay, Kafaja face. Now, okay, now I would like you to, can you just take out this? I want to see your neck portion quickly. Okay, so now if you see her neck, it is short and big. If you see, her neck is short and big. So now we will consider this as again Kafaja. Okay, now if you see my neck, if you see, it is very small and very long. So this is Vataja neck. Okay, I have lot of hands raised because see, there's no time. I have another class coming up. So please, if at all, only it is related to what I am speaking. Yes, Neha ji, quickly. Ma'am, like you say, ma'am, pale tongue है तो it is Vataja प्रकृति. हाँ. And ma'am, अगर coated होती है कई लोगों की Coated है तो obviously Kafaja हो गया ना.
कफजा। एंड मैम जैसे कई लोगों के मैम उस पे ना वो इंडिया के जैसे मतलब इट इज सॉर्ट ऑफ आइलैंड, ऐसे ऐसे चुकते चुकते। Geographical, we call it as या geographical या tongue. एग्जैक्टली। That is again, that is not a normal tongue. ओके मैम, सो व्हाट डू वी लाइक इन विच प्रकृति डू वी हैव इट? See, if at all again geographical में है तो पूरा टंग जो है वो पूरा ब्लैक 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 डालने से हो सकता है, या फिर वाइट ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो सकता है, तो देन वी कंसिडर इट एज वातज प्रकृति, एंड दे आर यूजुअली वेरी कॉमनली वेरी ड्राई. Okay, ma'am, it can be there in children as well. Yes, 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 yes. Okay. So, ma'am, is there anything related to their No, I'm not digestive going to system? do any this treatment aspect. Please, we are going to stick to prakriti now. Please. डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एस्पेक्ट हम लोग सिर्फ अभी प्रकृति, नेचुरल प्रकृति पे डिस्कस कर रहे हैं. Sure, sure, ma'am. Okay. Yeah, because there are almost more than 300 students, so please you have to understand that even other students are here, they have stopped everything they are doing and they have joined. Okay, yes Shweta ji, quickly. मैम आपने जैसे अभी आईब्रोज के बारे में बताया, लेकिन मैम मेल और फीमेल के आईब्रोज में तो डिफरेंट होगा ही. हाँ, तो मेल के आईब्रोज डिफर होंगे ही, लेकिन मेल आईब्रोज में भी आपको पतले आईब्रोज, मोटे मॉडरेट आईब्रोज, बहुत बुशी आईब्रोज ऐसे दिखेंगे ना. तो मैम पूरी बॉडी में ही मेल और फीमेल के भी डिफरेंस होगा, तो डिसाइड करते समय हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा. तो आपको मेल में मेल ही देखना पड़ेगा, फीमेल में वही फीमेल. एग्जाम्पल दिया कि ऐसे दिखते हैं बोल के. ओके, तो ऑब्वियसली आप जेंडर भी तो मायने करेगा. जब हम लोग एज पे डिसाइड कर रहे हैं, जब हम लोग प्लेस पे डिसाइड कर रहे हैं, तो जेंडर पे तो हमको डिसाइड करना ही पड़ेगा ना. ओके, थैंक यू. या yes, Kusum ji, quickly, lot of questions are coming up, please. नमस्कार मैम. हाँ जी, बताइए. वात प्रकृति हो किसी की, तो जैसे मुझे लगता है कि मेरी वात है, तो कंफर्म कैसे होगा? प्लीज कुछ हेल्प मैं करें. अभी प्रकृति के बारे में ही बात कर रही हूँ ना, तो पहले आप क्लास पे ध्यान दो ना. प्रकृति के बारे में ही मैं कैसे प्रकृति एसेस करते हैं वही चीज बता रही हूँ. ओके, आप प्लीज क्लास में कंसंट्रेट करिए, तो आपको आइडिया आ जाएगा कैसे प्रकृति को आप एसेस कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू. यस संगीता जी. गुड मॉर्निंग मैम. हाँ जी, गुड मॉर्निंग, बताइए. आई रिक्वेस्ट, जैसे आपने आईब्रोज का हमें बताया कि ये वात वाली हैं, ये पित्त वाली हैं, इसी तरह आई रिक्वेस्ट कि अगर आप बाकी जो इनको असेस कर रहे हैं मैम को, वैसे अगर आप बाकी प्रकृति के बारे में बता देंगे तो ज्यादा बेटर होगा लेटर ऑन. नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल संगीता जी, बिकॉज मैं हर प्रकृति को एक एक इंसान को लेके बैठूंगी तो इट इज नॉट नहीं, पॉसिबल. हर इंसान को नहीं मैम. जैसे आपने इनका बताया था कि पतले आईब्रोज हैं तो ये प्रकृति है, मीडियम फिर होंगे मैं तो कौन सी होगी, बता और रही हूँ मोटे ना, होंगे तो मैं कौन बता- सी होगी. हाँ, तो आपको पहले आप वात पित्त कफ को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो. मैंने जब वात पित्त प्रकृति का क्लास में ले रही थी, तो वात पित्त कफ के बारे में मैंने अच्छे से बताया था. दिस इज जस्ट अ रिविजन, प्रैक्टिकल असेसमेंट. अगर आपको बेसिक है तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है. वात बेसिक की तो मैम बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ हाँ, कि तो जैसे वही आपने देखिए, वात आपको प्रकृति असेसमेंट करना आ गया है. यहाँ पे सिर्फ हम लोग व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गाइडिंग यू हाउ टू टेक इन डिटेल प्रकृति असेसमेंट. अगर वात जो है तो क्या क्या फीचर्स आएंगे वो ऑलरेडी दिया गया है आपको. पित्त जो है तो क्या क्या फीचर्स रहेंगे वो ऑलरेडी दिया गया है. कफ जो है तो क्या क्या फीचर्स रहेंगे वो ऑलरेडी दिया गया है. ठीक है मैम. ओके, ओके, थैंक यू मैम. यस पल्लवी जी. हेलो मैम. या एक्चुअली सारिका जी का फोरहेड आपने वाता बोला ना. वाता कैन बी ईदर शॉर्ट और ब्रॉड. यस, एंड अगेन फिर बाद में कफ और वातज में मैंने डिफरेंशिएशन कैसे किया, बेस्ड ऑन द ऑयलीनेस, ड्राइनेस एंड ऑयलीनेस. आई डिफरेंशिएटेड इन दैट वे. ओके, ओके मैम. पित्ता का कैसे होगा मैम? मॉडरेट रहेगा, मॉडरेट रहेगा. मॉडरेट. यस, In between vata and kapha we can put the pitta. yes. Okay ma'am. So though depending upon the oiliness we will decide. Yes. Okay ma'am. Yeah. Thank. Yes, Riya ji. हाँ जी मैम. मैम यही समझना था कि जैसे एक एक उसको लेकर के तो हमें सब पता चल जाएगी इसमें वात ये पॉसिबल होता है, नहीं, पित्त ये- पॉसिबल नहीं है रिया जी, जैसे because already सपोज सबका करो नहीं ये ले सकती है, मैं सबका नहीं, नहीं ले सकती.
नहीं नहीं, सबका नहीं मैम, आप सुनिए तो, जैसे नोज का बताया आपने कि शार्प और पॉइंटेड है तो ऐसी होगी, और बाकी 2 रीजन में कैसी होगी, बस मैंने ऐसे ऑलरेडी आपको बताया है। explain- हाँ हाँ, मैं वो भी बता रही हूँ, इनफैक्ट अगर किसी का दिख रहा है तो मैं वो भी दिखा रही हूँ। ओके, जैसे जैसे आप शुरू से बॉडी पर लेके तो चल रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें हमें ये हो जाए कि सपोज करो नोज है, नोज में 3 तरह की नोज होगी, मैंने ये वाली ऑलरेडी नोज वो इस तरह चीज की होगी। बताई रिया जी, मैंने ऑलरेडी वो 3 तरह के नोज बताए हैं, अभी जस्ट बताए मैंने। जी जी जी, ऐसे ही सभी का बता दीजिए मैम। Okay. Now coming back to shoulders. Please take off your this. Shoulders अगर आप देख रहे हो तो इनका shoulders जो है वो छोटा है और hefty है, मोटा है. Okay. So इनका shoulder जो है वो छोटा है, hefty है, मोटा है. Okay. So what we can consider here is we are considering this as the कफज. Okay. कफज shoulders. जो shoulders है वो कफज हम लोग बोल रहे हैं. अगर पित्तज है तो थोड़े से मीडियम मॉडरेट रहेंगे और ज्यादा बहुत पतले भी नहीं रहेंगे, बोनी भी नहीं रहेगा, बहुत मोटा भी नहीं रहेगा. ओके, नाउ इफ यू सी आई हैव बोनी shoulders. If you see my shoulders are very bony. If you see I have broad shoulders but at the same time I have very bony. Okay, bony shoulders. So when I'm talking about bony shoulders, then these are the vataja. यहाँ पे मैं बोल रही हूँ वातजा. If you see all my bony जो bony है वो सारे के सारे जो है bony protrusions है. Okay, small size bony protrusion. So मेरा अगर आप skeletal structure देखोगे, my skeletal structure is vataja. Okay. Now coming back to Sarika ji, if you see her bony structure, all her bony structure are very thick and heavy. उनका अगर bone weight अगर आप देखोगे तो they are very heavy and thick bones. तो मेरे और सारिका जी के बीच में जो बॉडी स्ट्रक्चर आएगा उसको हम लोग पित्तज बोल सकते हैं. ओके, बॉडी स्ट्रक्चर व्हेन आई एम टॉकिंग इट कुड बी इन दैट वे. गॉट माय पॉइंट. नाउ कमिंग टू द स्किन. स्किन अगर ऑयली है, ड्राई है, तो ऑयली ड्राई आप कैसे पता करोगे? विदाउट मॉइस्चराइजर. मॉइस्चराइजर नहीं है, देन यू जस्ट ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस. ऐसे आप थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वहां पे एक वाइट लाइन आ जाएगा, तो दैट शोज द स्किन इज ड्राई, तो वो वातज स्किन हो जाएगा. अगर ज्यादा ड्राई नहीं है, ज्यादा ऑयली नहीं है, तो फिर देन इट कम्स इन अंडर पित्तज. अगर बहुत ज्यादा ऑयली है, विदाउट मॉइस्चराइजर भी बहुत ज्यादा चिपचिपाहट है, देन वी से दैट इट इज कफज स्किन. कफज स्किन. अभी यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोगों को सिर्फ स्किन टी शेप ऑयली होता है, एक पार्ट ऑयली होता है, ऐसा नहीं, हम लोग पूरे स्किन की बात कर रहे हैं. जनरलाइज स्किन जो बहुत ज्यादा स्किन कौन सा मेजोरिटी ऑफ द स्किन कैसे आता है, उसमें हम लोग उसको ये चीज कर रहे हैं. ओके, नाउ ये चीज हो गया. यहाँ पे आप बॉडी हेयर भी ये कर सकते हो, बॉडी हेयर. विंटर देखिए, एक्सेस विंटर हो गया या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन वो चेंज हो गया, वो अलग बात है. उसमें अगर कफज है, पित्तज है, तो उनके भी स्किन ड्राई हो जाते हैं. तो वी आर टॉकिंग इन जनरल कंडीशंस ऑफ द पर्सन. उसमें हम लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं. जो जिनका ड्राई रहता है उनका हर चीज में या फिर हर क्लाइमेट में उनका ऑलमोस्ट ड्राई ही रहता है. और जिनका नॉर्मल रहता है उनका, अगर फॉर एग्जांपल पित्तज स्किन है, धूप में उनका बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है और बाकी के टाइम पे उनका थोड़ा सा ड्राई, अगर बहुत ज्यादा विंटर है तो उनका ड्राई हो सकता है. ओके, दिस इज हाउ वी आर मॉडरेटिंग. कफज थ्रू आउट द सीजन उनका ड्राई ही ऑयली ही रहता है. Rehana ji, if at all it is only related to the topic I'm talking about. Hello, ma'am. Yeah. Ma'am, actually this time I couldn't attend this class. Will you provide its recording? Recording will be here. You please contact the coordinator. Yeah. Yeah. Thank you so much. Yeah. Okay. Neil Day.
Neil Deji, you have any question related to the topic? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. Ma'am, there are people who are initially very bony, but after some kind of workout, 5 to 6 years, they gain a lot of muscle. So उनका हम क्या consider करें? पहला वाला body type या जो बाद में होता है? देखिए यहाँ पे बहुत लोग बहुत पतले रहते हैं, फिर मसल गेन करते हैं, करेक्ट, विद लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट. हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओके, पहले उनका वातज था, अभी वो मेंटेन कर रहे हैं, जो बॉडी मास उन्होंने गेन किया है वो मेंटेन कर रहे हैं. इन सम केसेस क्या होता है, अचानक से दे माइट अगर उन्होंने जिम जाना बंद कर दिया तो दे माइट स्टार्ट लूजिंग द वेट, करेक्ट. सो इफ दे आर डूइंग व्हाटएवर जो वो मेंटेनेंस के लिए कर रहे हैं, प्रोटीन ले रहे होंगे, सप्लीमेंट्स ले रहे होंगे, वर्कआउट्स कर रहे होंगे, तो अगर ये तीनों चीज अगर वो बंद कर देते हैं तो ऑब्वियसली दे विल लूज वेट एंड दे विल कम बैक टू नॉर्मल से, करेक्ट. So their body prakriti is that, but only based on the body muscle mass we are not we are not segregating, or we are not maintaining that, or we are not assessing the prakriti. We are taking a lot of different now you saw हम लोग hair भी देख रहे हैं. अभी मैंने क्या बोला, सिर्फ bone structure के बारे में बात किया, करेक्ट. bone skeletal structure के बारे में बात किया. skeletal structure में क्या हो रहा है, मेरा bony structure है. Okay, so I have a Vataja bony structure, or you could say skeletal. My skeletal system is more of a Vataja. Whereas coming to Sarika ji, her skeletal system is more of the Kafaja. उनके bones जो है वो बहुत heavy है, उनका हाथ बहुत heavy है, उनका उनका जो bone weight है वो heavy है, bones जो है वो बहुत broad है. मेरा अगर आप ये wrist देखोगे तो मेरा wrist बहुत छोटा है, बहुत पतला है, correct? You can see my wrist, Neil ji. So yes, my bone structure is very small, very thin. So my bone structure is Vataja. Whereas Sarika ji, please show your wrist. So if you see her bone structure, see her bone structure. I'm not talking about the muscles or the fat. I'm just talking about the bone structures. Look at her bone structures. They are so big and heavy. You can all आप make out कर सकते हो कि बहुत heavy है उनका bone structure. So this is again Kafaja. Okay? इन दोनों के बीच में अगर कोई moderate है तो that will consider that as Pittaja. Clear? Okay. Thank you. Yeah. Yes, Dipti ji, quickly. मैम जिनके शोल्डर्स ब्रॉड भी हैं और हेवी भी हैं, तो ऑब्वियसली उनका कफजा हो गया ना. कफजा में बोन वेट देखो, ब्रॉड हेवी इज कफजा, टिपिकल कफजा. पतले और छोटे, पतले छोटे लंबे भी हो सकते हैं. कोई आप देखते होगे बहुत लंबे रहते हैं लेकिन इतने पतले और हड्डी रहते हैं, जैसे कि दे आर अगेन कमिंग अंडर वातजा. पित्तजा आर मॉडरेट, उनका हर चीज प्रोपोर्शनेट और मॉडरेट रहता है. ओके ओके, मतलब चौड़े भी हैं लेकिन बोनी है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. पायल जी, quickly, we are running out of time. Yes, ma'am. Ma'am, if you were thin before, like petite, and then you have put on weight, so what would you consider that? See, just now I gave for Neil ji ka ye, because of some metabolic disorder also they might have gained the weight, no? Yeah. So that is again a disorder. That is a different issue. Now we are looking at their prakriti. Again, petite, and usually who are petite, they are always stout. Yeah. We call them stout. So they always come under kafaja. Their body mass, even their bones are very big. Even though they are short, their bone mass is very big. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. Manishi ji. मैम, लोगों की प्रकृति क्या चेंज भी हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? चेंज नहीं होती है, चेंज नहीं होती है. उनकी मूल प्रकृति, अच्छा, किसी का स्वभाव या कैरेक्टर चेंज नहीं होता है, थोड़ा सा मॉडिफाई होता है, उतना ही. ओके ओके. जैसे मैम जो लोग होते हैं जो बहुत सारा चक्रा हीलिंग वगैरह करते हैं, बहुत चंचल होते हैं, वाता प्रकृति होती है, मॉडिफाई हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, वहां पे कंप्लीटली चेंज नहीं हो रहा है. इट कैन बी मॉडिफाइड बट इट कांट बी चेंज. It can't be changed. Okay. Yes. और ज्यादातर क्या मिलता है? दो प्रकृतियां ज्यादा होती है या वो डिपेंड करता है. या अच्छा, ठीक.
Sweetie ji, please write your queries and send. Please, please, please. I'm requesting. I'm not going to take any more questions now. Yes, मैम sweetie. या मैम एक क्वेश्चन बस मैम, जैसे अगर प्रकृति हम लोग अगर चाइल्डहुड में ही देख लेते हैं, वो फिर एज के साथ वैसे ही रहेगी या चेंज हो जी जाएगी? जी, वैसे ही रहेगा। प्रकृति चेंज नहीं होता है, इंसान का स्वभाव मूल रूप चेंज नहीं होता है। अगर हम लोग किसी बचपन का अगर देख ले रहे हैं हाँ, किसी का, सेम रहेगा, सेम रहेगा। ओके। और मैम एक और चीज, कर्ली हेयर्स क्या चीज में आएगा, क्या प्रकृति होगा? क्या कर्ली हेयर्स जो घुंघरालू बाल होते हैं, वो क्या हम लोग प्रकृति में? टेक्सचर की बारे में बात कर रहे हैं, टेक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं। घुंघरालू हेयर में भी फ्रीजी, ड्राई, ब्रिटल रहता है। ओके ओके। शुभांगी जी। मैम हम इंडिविजुअली एवरी चीज का प्रकृति देख रहे हैं, लाइक यू सेड आईज एंड दिस एंड दैट, सो ओवरऑल प्रकृति, इन सब का प्रकृति डिफरेंट डिफरेंट, किसी का वात है, किसी का कफ है। प्लीज आप वेट करो ना, क्लास के एंड के बाद आपको पता चल जाएगा हम लोग प्रकृति कैसे आई एम सॉरी। रिया जी, क्विकली प्लीज, नो मोर क्वेश्चंस। हाँ जी प्लीज डोंट रेज योर क्वेश्चंस, हैंड्स नाउ। ओके, यस, बताइए। जैसे आपने कहा ना प्रकृति चेंज नहीं हो सकती, है ना। जैसे सपोज किसी को गुस्सा आता है जन्म से ही, है ना, गुस्सैल है थोड़ा सा, पित्ता हो गया ना, हो गया। नहीं, वो तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन अभी वो क्या करता है, कुछ मेडिटेशन, कुछ वो, हाँ, तो वो शांत हो जाता मॉडिफाई हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, उसका मूल स्वभाव चेंज नहीं हो रहा है। ओके, नाउ I'm not going to take any questions. Please don't raise your hands. I'm done with the questions. Okay, so coming back to now हम लोगों ने body structure देख लिया, correct? Body structure हम लोगों ने देख लिया है। Now coming to your mindset. Okay, अभी हम लोगों ने body structure, इसमें आप nails का भी देख सकते हो, fingers का देख सकते हो। Okay, nails brittle है, ड्राई है, ब्रिटल है, वो सारी चीजें। ओके, वातज, पित्तज, कफज कैसे रहते हैं, वो सारी मैंने प्रकृति क्लास में भी मेंशन किया है। गो बैक टू द क्लास रिकॉर्डिंग। ओके, आप नेल्स देख सकते हो, बॉडी हेयर देख सकते हो, बॉडी हेयर भी आप देख सकते हो, वो सारी चेंज हो सकता है। ओके, सागर जी, आई कांट चेंज द स्पॉटलाइट, रीजन बीइंग हम लोगों का जो कैरेक्टर है या फिर हमारी जो अभी प्रकृति असेसमेंट की जो क्लाइंट है वो सारिका जी है। ओके, please bear with it. Now coming to if you see, abhi now coming to the upper part, upper portion, upper torso अगर आप देख लो तो मेरे अगर आप breast देख ले हो तो they are very small. Okay, so again here we are coming into small and moderate. Okay, small and moderate में again small जो है body ऊपर का, अगर male का हम लोग chest देख रहे हैं तो उसका कैसे रहेगा, या तो फिर ऐसे चौड़ा रहेगा, या तो फिर पतला रहेगा, या तो फिर ऐसे वी शेप में रहेगा। ओके, सो अगर बहुत ब्रॉड है तो फिर अगेन कफज, बहुत पतला और ऐसे छोटा है, स्क्वीज्ड अप है तो वातज, मॉडरेट है, यू नो, मॉडरेट मॉडल टाइप्स है तो फिर कफज, पित्तज हो जाएगा। कमिंग टू ब्रेस्ट साइज इन द फीमेल्स, अगेन मेरे ब्रेस्ट अगर आप देख रहे हो तो वो छोटे हैं, अगेन दिस इज अगेन वातज। If you see Sarika Ji's, they are big, then it is Kafaja. In between जो moderate होते हैं वो, because these are the main distinguishing criteria. कुछ लोगों के बहुत ज्यादा hanging वगैरह हो सकते हैं, so there could be some carcinomas, या फिर आप बोल लो you know cancer issues भी हो सकते हैं। तो you have to be very you know because breast cancer is something which is ignored very commonly. एंड 4th स्टेज में पता चल जाता है, सो बी माइंडफुल ऑफ दैट। जब आप एसेस कर रहे हो तो ये भी चीज एसेस कर लो, तो आप ये भी पूछ सकते हो कि आप यू नो आपके ब्रेस्ट ऐसे ही है। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा वियर्ड है, बट इफ यू आर अ हेल्थ प्रोफेशनल, सो देयर इज नो मेल फीमेल वियर्डनेस, ये सारी चीजें नहीं रहती हैं। ओके, नाउ कमिंग टू दीज ऑल थिंग्स, तो ये हम लोगों ने सारी चीजें देख ली। ओके, नाउ कमिंग बैक टू हम लोगों ने फिजिकल ट्रेट्स देख लिया। ओके, नाउ कमिंग टू एक्टिविटी स्टेज, बहुत ज्यादा यू नो बहुत ज्यादा बात करते हैं, बहुत ज्यादा। सारिका जी, डू यू स्पीक अ लॉट, आर यू अ चैटर बॉक्स और मॉडरेट, और आप बहुत ज्यादा कम बोलते हैं? मॉडरेट। सो अगेन वी आर कमिंग इनटू पित्तज। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कम आता है? नहीं आता है। ओके, so we consider as Kafaja.
अगर आप किसी को मतलब किसी पे आपको गुस्सा आया तो आप गुस्सा जल्दी से आपका भूल जाता है या फिर मतलब वो दिमाग में रह जाता है? अंदर ही रहता है। अंदर ही रहता है। सो अगेन हियर बॉटलिंग अप, तो बॉटल अप हो रहा है तो ये कफज होता है। अगर वातज होता है तो वो एक्शन से दिखा देता है। अगर पित्तज है तो झटक से वो बाहर निकाल देता है। वातज है तो फिर वो उसको गुस्सा आता है वो भूल भी जाता है या तो फिर थोड़ी देर वो निकाल देता है। कफज वो बिल्कुल भी उसका गुस्सा नहीं आता है तो वो दबा के रखता है। पित्तज गुस्सा आता है तो या तो फिर वो निकालता है या तो फिर वो ग्रज रखता है, मैं इसका बदला बाद में लूंगा, रुक तू। दे आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। ओके, सो दिस इज मेंटल स्टेट। अगर आप कुछ पढ़ते हो या फिर आपको मेमोरी आपका कैसा है, आप ध्यान में रखते हो, इज इट पॉसिबल टू रिटेन और यू फॉरगेट इट? अभी तो फॉरगेटेबल हो गई है। अभी नहीं, पहले से, मतलब इन जनरल याद रहता है। याद रहता है। ओके, सो व्हाट आई लुकिंग एट इनके आंसर से मुझे ऐसे लगता है उनको मॉडरेटली याद रहता है, मॉडरेटली याद नहीं रहता है। ओके, सो विल कंसीडर हर मेमोरी इन पित्तज। ओके, मॉडरेट। नाउ कमिंग टू व्हाट डू यू लाइक, आपको बाहर घूमना अच्छा लगता है, एक ही घर में बैठना अच्छा लगता है, या फिर हर वीकेंड नए नए जगहों पे जाना अच्छा लगता है? घूमना पसंद है। घूमना पसंद है। ओके, सो अगेन इन वातज दिस कम्स अंडर वातज। वातज इज पर्सन वेयर इन ही ऑलवेज लव्स टू मूव, ऑलवेज लव्स टू मूव, मतलब एक जगह पे वो टिकते नहीं है, एक जगह पे वो टिकते नहीं है। ओके, हाउ मेनी प्रोफेशंस हैव यू चेंज्ड? 3 प्रोफेशंस। ड्रास्टिक चेंजेस है प्रोफेशन में या और सेम प्रोफेशन में डिफरेंट ड्रास्टिक। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट इंजीनियरिंग किया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन किया, सॉरी कम अगेन। एडमिनिस्ट्रेशन में किया, एचआर में। इंजीनियरिंग किया आपने? आपने इंजीनियरिंग किया, फिर उसके बाद एचआर, एमबीए इन एचआर किया, फिर उसके बाद आपने डाइटिशियन किया। सो इफ यू सी जो उनका प्रोफेशन है, आपको बचपन में क्या बनना था? डॉक्टर बनना था। सी, बचपन में उनको डॉक्टर बनना था, फिर वो लेकिन गए इंजीनियरिंग करने गए। ये भी नहीं बोल सकते कि सीट वो मिला, अगर वही सीट मिला अगर नहीं होता तो शी कुड हैव क्विट द कॉलेज एंड शी कुड हैव डन समथिंग एल्स। बट उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, लेकिन बाद में उन्होंने एचआर किया, फिर बाद में वो सारा छोड़ के डाइटिशियन उन्होंने किया। तो अगेन ड्रास्टिक, फ्लिकिंग, या फिर आप बोल लो फिकल, जंपिंग, वेरिंग। In my case, right from childhood, I wanted to be a doctor. So I have been, मेरा goal वही oriented है, and even now I'm doing those only related to my field. So goal, focus oriented. So in my case, focused, pittaja. In case of Sarika ji, it is vataja. Okay, so मैं थोड़ा बहुत difference देने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे. Now then coming back to your आपको बहुत ड्राई वाला बहुत ज्यादा ये करता है, जैसे कि ड्राई वेदर आपको अच्छा लगता है, आपको धूप अच्छा लगता है, बारिश अच्छा लगता है, या फिर ठंड अच्छा लगता है? अक्टूबर वाला जो सीजन होता है ना, जिसमें ज्यादा ठंड है ना ज्यादा। हाँ, तो सी, अगर ज्यादा ठंड है ना, ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी है, so this is moreover you could say moreover pittaja. Okay, pittaja people like cool. Okay, pittaja people like cool. तो यहाँ पे हम लोग वापस उनको पित्तजा बोल रहे हैं। नाउ कमिंग टू कौन से सीजन में आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या फिर आपको इरिटेट होता है? गर्मी में। सी, very 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 indicative of pittaja climate variation। उनको गर्मी बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोगों को बारिश जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोगों को ठंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ओके, बेस्ड ऑन दिस, नाउ कमिंग टू योर सेक्स ड्राइव। हाउ इज योर सेक्स ड्राइव? टू फास्ट और इजीली आपको ऑर्गेजम आता है, या फिर आपको ऑर्गेजम नहीं आता है, या फिर हाउ इज योर सेक्स ड्राइव? यू आर द वन टू इनिशिएट और योर पार्टनर इज द वन टू इनिशिएट?
Moderate है. Moderate है. See, in some cases, females भी है. There are some females who are more, initiating. Again, they are initiating. They have a lot of big, heavy sex drive. So and they get a lot of time to take, or orgasm हो या फिर ejaculation हो, उनमें वो बहुत ज्यादा टाइम लगता है. क्विकली होता है. वातज में क्विकली हो जाता है. ejaculation हो गया या फिर orgasm जो है वो क्विकली हो जाता है. They go quickly high, they come down quickly. This पित्तज में moderately they take time to get orgasm or ejaculation, whereas in kaphaja they take a lot of time. उनका जो है वो बहुत strong sex drive रहता है. So this is how you have to, we are taking everything into consideration. Please keep in mind, यहाँ पे कुछ गलत चीज नहीं हो रही है या तो फिर शर्माने वाली चीज नहीं है. We are all health professionals and these all things matter a lot. Especially sex drive जो है वो infertility cases, divorce, mental stress, depression, ये चीजों की वजह से ये चीजों का creation भी होता है. So you have to be very very careful about all these things. Understood? Be health professional, health professional वाला mindset रखो. Now coming to your sleep, how's your sleep? Sound. Sound sleep. कितने बजे सोने जाते हो आप? 9:30. What time you wake up? 4:30. 4:30. So 9:30 to 4:30 कितने घंटे का sleep हो गया? 10? Not 10. Less. Okay. Maybe roughly 7 to 8 hours if you say. Sound sleep. हाँ, 8 hours तो हो जाते हैं. Yes. Yes, Bhavna ji, you can leave the class. 8 hours minimum sleep हो जाता है. एक बार आप सोने गए तो आप उठते हो कि नहीं उठते हो? बहुत rare. बहुत rare. Okay, so she has deep sound sleep. So again, kaphaja. Coming to सपना. आपको सपने कैसे आते हैं? एकदम हवा में उड़ने वाले सपने आते हैं या फिर ट्रैवलिंग वाले सपने आते हैं या तो फिर आग वाले सपने आते हैं या तो फिर एकदम पानी वाले एकदम ठंडे ठंडे अच्छे वाले सपने आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ज्यादा सपने नहीं आते. जब आते हैं तो मतलब अच्छे वाले ही आते हैं तकरीबन. आपको याद रहते हैं कौन से सपने आते हैं बोल के? हाँ, लविंग केयरिंग वाले आते हैं. ओके, सो अगेन बेस्ड ऑन दी सपनों का ये स्टाइल देख के कफज सपने आते हैं. तो आपको कुछ लोगों को ऐसे होता है कि सपना याद तो नहीं रहता है लेकिन उठने के बाद वो एक घबराहट सी फीलिंग रहती है या तो फिर एंजाइटी वाली फीलिंग रहती है या फिर गुस्से वाली फीलिंग, एग्रेसिव नेचर वाले फीलिंग रहते हैं. तो ये वाले अगर वातज है तो एकदम फ्लाइटी वाले, एकदम हवा वाले, पानी वाले, हवा वाले, घूमने वाले, फिरने वाले, ऐसे वाले सपने आते हैं. लेकिन उनको ज्यादातर याद नहीं रहता है लेकिन ऐसे लगता है थोड़ा सा एंजाइटी इश्यूज होते हैं. वही पित्त जो होते हैं तो बहुत ज्यादा डरावने, मतलब सपने देख के उठने के बाद एकदम ऐसे डर वाला फीलिंग रहता है, आग ऐसे वाले. और रहे कफज वाले, दे ऑलवेज हैव वेरी वाटरी फीलिंग, वाटरी दिस. I'm not taking any वाले questions. रनिंग वाले सपने, of course again रनिंग, घूमने फिरने, चलने उड़ने, ये सारे जो है वो वातज है. पित्तज आग, एग्रेसिव, डर वाले, ये सारे पित्तज है. कफज इज अगेन वेरी वाटर वाले, कूलिंग, सूदिंग, लविंग वाले. नाउ कमिंग बैक टू yes, I think मेंटल ट्रेट्स आपको कैसे ये करना है वो आपको आइडिया आ गया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एवरीबडी, मेंटल ट्रेट्स को कैसे एसेस कर सकते हैं? यू हैव दैट आइडिया आई गेस. एवरीबडी, सबको हो रहा है ना? यस. ओके, नाउ कमिंग टू योर you could say physiology traits. हम लोग क्या देखेंगे अभी? नाउ फिजियोलॉजी ट्रेट्स आपके आईसाइट आपका ठीक है? आईसाइट ठीक है, फोकस प्रॉब्लम आती है लैपटॉप पे. अभी 45 की एज में आया, अभी लगा है. ओके, योर एज, मतलब आपके आंख बर्निंग ज्यादा होते हैं, ड्राइनेस बहुत ज्यादा होता है या तो फिर फ्रीक्वेंट इन्फ्लेमेशन, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, या फिर वो आंख में ऐसे ये आता है ना ऑयली कुछ एंड में डेब्रिस, वैसे कुछ आता है? इन्फ्लेमेशन इसलिए है कि अभी जैसे लैपटॉप पे ज्यादा पढ़ रही है. आईसाइट ठीक है, 6/6. दिस इज जस्ट अ फोकस क्लास फॉर लैपटॉप, रीडिंग क्लास.
On an average your eyes are very dry, burning or ऐसा कुछ ड्राई कह सकते हैं, ड्राई आईज का प्रॉब्लम आ गया है, आ गया। पहले से ही ऑन एन एवरेज पहले से ही ऐसा था या अभी रिसेंटली आया? कुछ नहीं, नथिंग, eyes are perfectly fine. So now you see 46 age, so she is ending up with dryness of the eyes. Again dryness is what which dosha? Vata. So because she is entering into Vataja, she is getting more prone to Vataja disorders now. Okay, clear? Now coming to your oral cavity. आपका oral cavity आपका जो oral cavity उसमें आपको dryness ज्यादा होता है आपके oral में, या फिर mucus phlegm वाला ज्यादा होता है, या फिर अब मॉर्निंग में ना ऐसा लगता है कि मतलब नोज रनिंग नोज है, गले में कुछ कफ है, ऐसा फील आ रहा है। अभी आ रहा है कि स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा रहता ही है? नहीं स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, परफेक्टली फाइन। हाँ, नो बट योर सलाइवा इज टू मच। हाउ इज योर सलाइवा? आपका जो मुंह का सलाइवा है वो कैसा है? इज इट म्यूकॉइड, वाटरी और स्लाइटली लेस स्कैंटी? नहीं बता सकती, मतलब ठीक है, कुछ ऐसा ज्यादा पता नहीं लगता है, सारा दिन पानी पीती रहती तो वैसे भी पता नहीं लगता। हाँ, सो नाउ वी कुड से हर माउथ अल्सर्स वगैरह ज्यादा होते हैं क्या आपको? हीट बॉयल्स, माउथ अल्सर्स कभी नहीं? ओके, सो वी कुड से दैट हर ओरल कैविटी जो है वो कफज में आता है, वी कुड से दैट। ओके, नाउ अगेन मे बी हर कफर हैज इंक्रीज, उनका कफर इंक्रीज होने की वजह से रनी नोज और ये थ्रोट में कफ जो ओके, सो प्लीज बी बहुत ज्यादा ध्यान दो। मैं जब भी क्वेश्चन उनको पूछती हूँ, हर चीज का क्वेश्चन पूछती हूँ, तो मैं वाता पित्त कफ तीनों के क्वेश्चंस पूछ रही हूँ उनको। ओके, फर्स्ट आई एम आस्किंग वाताजा, सेकंड आई एम आस्किंग पित्तजा एंड थर्ड आई एम आस्किंग कफजा। ओके, now coming back to your now we are going to do Agni assessment. Of course ये बाद में करना था लेकिन मैं अभी कर रही हूँ। आप सुबह ब्रेकफास्ट आप कितने बजे उठते हो सुबह के टाइम पे? 4:30 और ब्रेकफास्ट आप कितने बजे लेते हो? 7:15-30 के बीच में। ओके, 7 to 7:30 के बीच में आप लेते हो। 4:30 उठने के बाद आप क्या क्या चीज करते हो? पहले पानी पीती हूँ, 3-4 ग्लास पानी हो जाता है, उसके बाद ठंडा पानी, गर्म पानी, रूम टेम्परेचर वाटर? सबसे पहले उठते ही बॉटल जो भी पास में है, चाहे सर्दी है गर्मी है, उसमें से ही पानी पीना है थोड़ा सा, और उसके बाद उठ के मतलब ल्यूकवार्म वाटर पीती हूँ 3 ग्लासेस के आसपास। उसके बाद ये सोक्ड आलमंड्स होते हैं, 5-6 आलमंड्स खा लेती हूँ, साथ साथ खाना बनाते हैं, तो उसके बाद बस नहा धो के और ब्रेकफास्ट का टाइम आ जाता है। आप मोशंस कब पास करते हो? आप फ्रेशन अप? कॉन्स्टिपेशन रहता है, मैं रात को लैक्सेटिव लेके सोती हूँ, तो मॉर्निंग में तकरीबन 6 o'clock के आसपास होता है। तो इससे पहले आपको कॉन्स्टिपेशन अभी से हो रहा है कि पहले से हो रहा है? नहीं, वो पहले से बहुत, मतलब कॉन्स्टिपेशन पहले से ही? हाँ, 6th-7th क्लास में पढ़ती थी तब से। ओके, सी नाउ अभी क्या हम लोग देख रहे हैं, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, या फिर उनका आप बॉडी स्ट्रक्चर आप बोलो, या फिर आप उनका फेस सब बोलो, वो कफ पित्त के बीच में ज्यादा हो रहा है। कफ ज्यादा है, पित्त मॉडरेट है, और फिर बाद में जो उनका वात है, फीचर्स आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल फीचर्स, वो सारी चीजें कफ और पित्त के बीच में ही ज्यादातर है, वात जब बहुत कम है। अगर उनका गट अगर आप ले रहे हो, उनका जो गट सिस्टम हम लोग बोल रहे हैं, उनके मोशंस जो है वो वातज है। कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ, ओके, शी हैज क्रूर कोष्ठ। क्रूर कोष्ठ मतलब जहां पे स्टूल्स, कॉन्स्टिपेशन रहता है, जो गट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा ड्राई रहता है। ओके, नाउ कमिंग टू 7:30 आप ब्रेकफास्ट करते हो, तो क्या ब्रेकफास्ट करते हो आप? जो भी चपाती बनी है, चपाती और सब्जी तकरीबन, या फिर एक पीनट बटर सैंडविच और चाय। ओके, आप चपाती अगर खा रहे हो तो कितना एक चपाती खा रहे हो? एक। साइज क्या रहता है चपाती का? 5 to 6 inch। This much, this big? Okay,
तो ये चपाती ये साइज का वो खा रही है, 1 इन नंबर विथ अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पे क्या दिखाता है, उनका अग्नि बहुत मंद है। शी हैज अ वेरी लो अग्नि, okay, because she has woken up at 4:30 till 7:30 for 3 hours she is not having anything, so this shows morning उनका अग्नि बहुत मंद हो रहा है। what time you have your next meal? 10 o'clock के आसपास फ्रूट्स ले लेती हूँ, 10-10:30 के। कितने फ्रूट्स लेते हैं? कोई भी एक फ्रूट, डिपेंड करता है, कभी एप्पल, कभी ऑरेंज, कभी जो भी सीजनल फ्रूट है वो चले। सीजनल फ्रूट, ओके। सो 10 o'clock भूख लगती है लेते हो, या फिर आप डाइटिशियन हो आपको मेंटेन करना है बोल के आप लेते हो? नहीं, भूख लग जाती है। ओके, सो नाउ यू सी 10 o'clock के आसपास, तो 10 o'clock उनका पित्त जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो पित्त काल जब शुरू होता है तो उनको भूख लग रही है, तो शी इज हैविंग 1 मिड फ्रूट, ओके। सो 7 from 1 in the morning she is having almonds, 4 to 5 almonds, and after that 7:30 she is having what, her this what you could say, her breakfast, again it is in a less quantity, okay, because वो उतना ही खाती है, आप उतना ही खाती हो बिकॉज ऑफ द वेट इसकी वजह से, या फिर यू आर हैविंग इट बिकॉज यू आर नॉट दैट हंग्री? नहीं, उतनी ही भूख लगती है, उतना ही खाती हूँ। हाँ, ये मतलब आपने आदत लगाई है, पहले आप ज्यादा खाती थी, कम खाती थी, अभी? हाँ, पहले ज्यादा खाती थी, फिर उसके बाद अब कम हो गया अपने आप। सो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, सात्म्य, शी इज अकस्टम, वो अपने बॉडी को वैसे अडाप्ट कर रही है, ओके। सो अगेन दिस इज नॉट अ गुड थिंग। नाउ कमिंग टू 10 o'clock, फिर आप लंच कितने बजे खाते हो आप? लंच से पहले मैं सैलेड 12:30 पौने 1 बजे, वैसे 1 बजे तक हो जाता लंच। हाँ, लंच में आप क्या क्या खाते हो? लंच में एक चपाती, दाल, सब्जी, सैलेड। Okay, see now what is happening here, even okay, सब्जी और सैलड वगैरह का जो क्वांटिटी है वो कितना है? हम सब्जी भी 1 कटोरी के आसपास होती है, और जो भी प्रोटीन वाली कोई भी एक आइटम बनती है, मतलब चाहे वो समझ लो आप दाल बनेगी या नॉनवेज बनेगा या पनीर, मतलब वो साथ में रहेगा, 1 कटोरी वो भी रहता है। और 1 खीरा, या कभी कभी 1 खीरा साथ में, अभी जैसे मूली आ गई है तो रेडिश भी रहता है, एंड 1 चपाती रहता है। ओके, यू हैव डाला होता है, सॉरी ग्रीन्स में, जैसे कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल डाली होती है चपाती में भी। चपाती में, सो इट इज मोर अगेन, चपाती के बजाय वो पराठा या फिर थेपले के फॉर्म में आप लेते हो, ओके। इतना खाने से आपका पेट भर जाता है? थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाती है। फिर नेक्स्ट मील मतलब चाय की लगती है, एक्चुअली मुझे लगता है कि शायद मुझे चाय की आदत है, तो मुझे लगता है कि घंटे 1.5 बाद, एक पहले ग्रीन टी लिया, उसके आधे पौने घंटे बाद ही अपनी चाय चाहिए। ओके, फिर आपका नेक्स्ट मील कितने बजे होता है? नेक्स्ट मील तो जाके घर 7 o'clock के आसपास। 7 o'clock, तो उसके बीच में मतलब 1:30 और 7 o'clock के बीच में आप कुछ नहीं खाते हो? चाय और पीनट्स होते हैं तकरीबन। चाय और पीनट्स, और फिर एक ग्रीन टी हो जाएगा, एक चाय हो जाएगी, साथ में पीनट हो जाएंगे। और फिर बाद में आप रात को क्या मतलब रात का डिनर आपकी नेक्स्ट मील 7 o'clock आप क्या खाते हो? कभी दाल चावल होते हैं, या कभी, मतलब गर्मी है तो दाल चावल, खिचड़ी, दलिया, ऐसा कुछ रहता है। और अभी सर्दी है तो वही चपाती और मतलब कुछ भी प्रोटीन वाली सब्जी रहेगी। कितने बजे आप? या तो दाल होगा या तकरीबन नॉनवेज या पनीर, ऐसा कुछ रहता है। और टोफू भी रहता है। कितने बजे? 7-7:15 के आसपास, 7:30 तक सोचो डिनर कर लेते हैं। 7:30 तक, और फिर उसके बाद आप सोने 9:30 जाते हो? हाँ, उसके बाद तो बस 7:30 गर्म पानी बीच में, गर्म पानी। ओके, सो नाउ सी, उनका जो अग्नि है वो तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण अग्नि है, क्योंकि उनको हर 1.5-2 घंटे में उनको कुछ ना कुछ खाना है, लेकिन वो अपना जो फूड है वो बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं। तो उनका अग्नि बहुत बड़ा है, फूड जो है वो कम मात्रा में ले रहे हैं, तो उनकी वजह से क्या हो रहा है, अग्नि मंद हो रहा है उनका।
अग्नि डिरेंज हो रहा है. सो व्हाट शी हैज टू डू, अगेन बीच में ग्रीन टी और चाय का भी बहुत ज्यादा हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच जो तिक्त रस है वो बहुत बढ़ा रही है वो. ओके तो तिक्त रस जब बहुत बढ़ा रही है तो उनसे क्या हो रहा है, उनसे अब फिर रूक्षता बढ़ रही है, उनके बॉडी में रूक्षता बढ़ रही है. ओके सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. सो दिस इज हाउ यू हैव टू असेस द अग्नि. मैंने अभी क्या किया, शुरू से उनको पूछा कि अग्नि कितने बजे शुरू, मतलब वो नाश्ता क्या कितने बजे खा रही है, कितना खा रही है, क्या खा रही है, तो बीच में कितना गैप हो रहा है. तो इफ यू कैन सी एवरी 2 to 3 hours शी इज फीलिंग हंग्री बट शी इज हैविंग अ कंट्रोल्ड डाइट. वो बहुत डाइट को है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही है. ओके यहाँ पे जो अग्नि और खाना है उसकी वजह से वो मैचअप नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उनका जो कोष्ठ है या फिर उनका जो क्रूर कोष्ठ हम लोग जो बोलते हैं वो सेट नहीं हो रहा है, या फिर वो यू कुड से दैट इज वन ऑफ द रीजन. ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो रहा है बॉडी में, अगेन बहुत ज्यादा हो रहा है, अगेन शी इज कमिंग इनटू वातज अगेन शी. सो हाउ वी कैन रेक्टिफाई दिस, शी इज अगेन नॉट डूइंग एक्सरसाइज, मतलब वर्कआउट्स नहीं हो रहे हैं, योगा नहीं हो रहा है, करेक्ट. सो दीज आर द थिंग्स विच शी इज नॉट डूइंग. तो हम लोग इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देख लो तो उनका कोष्ठ जो है वो वातज है, अग्नि जो है वो तीक्ष्णाग्नि है. सो अगेन हम लोगों ने एसेस क्या किया, कैसे एसेस किया, यू गॉट माय पॉइंट, करेक्ट. उनका अग्नि कैसे एसेस किया और उनका ये वाली चीज कैसे एसेस किया. ओके सो बेस्ड ऑन दिस व्हाट वी कुड से इज शी इज मेटाबॉलिज्म, उनका मेटाबॉलिज्म, उनका भले ही उनका अग्नि तीक्ष्ण है, उनका कोष्ठ वातज है, लेकिन उनका मेटाबॉलिज्म बहुत लो है, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत लो है. ओके तो व्हाट वी आर नाउ, अगर हम लोग ये सारी चीजें देख रहे हैं तो इसका हम लोग एसेस कब कैसे कर रहे हैं, शी इज कफ पित्तज प्रकृति, कफ एंड पित्तज प्रकृति, कफ पित्त प्रकृति, वात बहुत कम मात्रा में है उनका. ओके वात बहुत कम मात्रा में है. सो दिस इज हाउ वी आर असेसिंग द प्रकृति ऑफ दिस पर्सन और एनी ऑफ द पर्सन. ओके तो मैंने सिर्फ अभी आपको गाइडेंस दिया है, यू कैन स्टिल मेक. मैंने अभी देखा मेंटल स्टेटस, उनके ऑक्यूपेशन को लेके, हर चीज को लेके मैंने वात पित्त कफ में सेग्रीगेट करने की कोशिश की. ओके सो आई थिंक वी आर डन विद द असेसमेंट ऑफ बोथ प्रकृति एंड अग्नि. नाजिश सुल्ताना क्विकली. हेलो मैम. हाँ जी बताइए. मैम मुझे जो है आई एम नाउ स्पीकिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया. हाँ मुझे थोड़ा बहुत जो मैंने अटेंड की हूँ, बेसिक कोर्स मैंने अटेंड की हूँ यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट में. मैंने अंडरस्टैंड की हूँ कि मैं वात प्रकृति की हूँ, और बट यहाँ पे बहुत डिफिकल्टी होती है मुझे आयुर्वेदिक चीजें लेने में. त्रिफला स्पेशली मुझे जो है वो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का नहीं मिला है. तो और मैं हमेशा कॉन्स्टिपेटेड रहती हूँ, और मुझे अपनी अग्नि को भी इंक्रीज करना है, बिकॉज मुझे अभी खाने में उतना मन नहीं लगता है. तो थोड़ा सा कंसल्टेशन, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी होता है, तो आप थोड़ा सा ऑनलाइन कंसल्टेशन करवा लो, तो डाइट और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं वो आपको इंस्टीट्यूट में बता देंगे. ओके जी 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 ओके थैंक यू. रिया जी. यस जी मैम वो हो गया था, बहुत पहले किया था. ओके ओके ठीक है. रवि उल्ला जी. यस मैम. हाँ जी मैम अभी जो आपने मैम से जो भी खाने पीने की जो भी बातें पूछी, मैम तो प्रेजेंट टाइम की अपनी सारी चीजें बता रही हैं कि अभी हम खा पी रहे हैं जो, ठीक. आप तो बता रहे थे कि इस चीज के बारे में कि एग्जैक्टली मैंने उनको वही बोला ना, उनका अग्नि जो है वो बहुत तीक्ष्ण. अभी वो डाइटिशियन है तो वो कैलोरीज के हिसाब से उन्होंने अभी अपने फूड हैबिट्स चेंज किए हैं. तो मैंने उनको पहले क्या पूछा, ब्रेकफास्ट का पहला ही क्वेश्चन पूछा ना, अब पहले से इतना खाती हो या फिर पहले आप, तो उन्होंने क्या आंसर दिया, पहले मैं बहुत ज्यादा खाती थी, अभी मैंने बहुत कंट्रोल्ड में खा रही हूँ. तो इसी से हमको पता चल गया कि वो अभी बहुत ज्यादा खाना कम कर दिया है उन्होंने.
इसकी वजह से उनकी अग्नि जो है वो डिरेंज हो गई है, उनकी अग्नि डिस्टर्ब हो गई है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स शुरू हो रहे हैं उनको। यस यस। अच्छा, ये जो जी जी, इसमें जैसे कि आपने वो सपने वाली बात करी थी, सपने वाली, सपना जो है जैसे कि अगर बच्चा है बचपन में जो सपना बचपन में देखता है तो वो नहीं तो है, वो तो उसको भी याद नहीं रहता, नहीं उसको नहीं, पता भी नहीं रहता कि, लेकिन इतना वो बोल सकता है कि मैंने कुछ देखा तो मुझे बहुत डर लगा, मैंने कुछ देखा तो मुझे अच्छा लगा। ओके। और ज्यादातर बच्चों को तो सपने की याद ही नहीं रहती है। सपना हमको याद रखना कब शुरू हो जाता है, व्हेन वी एंड इनटू टीनेजर्स। ज्यादातर जब स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तब सपना हम लोग देखने लगते हैं। तो वही चीज यहीं पे कंफ्यूजन थी कि बचपन से अगर हम इस चीज को देखेंगे तो अब इस टाइम तो मुझे याद, इस टाइम भी बड़ा मुश्किल से याद रहता है कि क्या देखा था। नहीं रवि जी, ऐसा कुछ नहीं है ना, बचपन से जो सपना, एक ही सपना थोड़ी ना देखेंगे हम लोग। नहीं नहीं, वो बदल बदल कभी नहीं, हाँ, लेकिन आज मैं कुछ सपना, दिन भर मेरे साथ जो चीज हुई है उस पे उस आधार पे मेरे को सपना गिरेगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दिन भर आपका अच्छा गया हो, लेकिन कॉमनली आपको ऐसे सपने गिरते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ पानी वाले सपने गिरते हैं, कुछ लोगों को बहुत अलग चीज वाले सपने गिरते हैं, कुछ लोगों को हमेशा सपने एकदम ऐसे सपने में उठ के घबरा के उठते हैं। तो वैसी सारी चीजें, जब आप जितने, वही मैं बोल रही हूँ, मैंने मेरे क्लासेस में हमेशा बोला है, आप जितने लोगों की प्रकृति एसेस करोगे उतना क्लैरिटी आपको आएगा। हाँ, क्योंकि हर इंसान का जवाब अलग रहेगा। बिल्कुल। ओके, बिल्कुल। या ओके ओके मैम, थैंक यू। प्रस्तुति जी। प्रस्तुति जी, क्विकली। हाँ हेलो मैम, एक्चुअली मैंने अपने हस्बैंड का प्रकृति एनालाइज किया तो उनका पित्त प्रकृति के वो उनका आया, लेकिन उनको हॉट पोटेंसी वाली चीजों से प्रॉब्लम नहीं होती, उनको ठंडी चीजों से प्रॉब्लम होती है। तो फिर उनका प्रकृति वापस से आप एसेस कर लो। अच्छा, उनको जैसे इमली नींबू आइसक्रीम ये खाते हैं तो वो उनको प्रकृति फिर, हाँ, उनका प्रकृति फिर आप वापस एसेस कर लो। ठीक है। अच्छा ओके मैम। अभी मैंने जो बोला है उस चीज पे आप वापस से रिकॉर्डिंग सुनो और वापस से उनका प्रकृति एसेस करो ठीक से। अच्छा ओके मैम, थैंक यू। पूजा जी, मैं और 5 मिनट में वापस से अग्नि एसेस नहीं कर सकती, आप प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिए। यस रानी जी। Okay, good afternoon, ma'am. Good afternoon. The first thing what I wanted to ask you was, we have seen that certain people, उनका वाता का एज है, but then they are severely having acidity problem, पित्ता का। So वाता जो एज जो है वो अलग है, प्रकृति इंसान का तो सेम ही रहेगा ना, जो प्रकृति उसका बचपन में है, मिड एज में है और एंड एज में उनका प्रकृति सेम ही रहेगा। अच्छा। वातज काल, जैसे अभी दोषिक डे का दोषिक साइकिल है, सीजन का दोषाज है, तो उससे हमको इफेक्ट होगा, वैसे ही वय का भी अपना अपना दोषा रहेगा, वो इफेक्ट करेगा। हम लोगों ने सारिका जी का देखा, उनका जो प्रकृति है वो कफ पित्त है, लेकिन वो अभी धीरे धीरे उनको वातज भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, क्योंकि वो उनका वातज एज में जा रहे हैं वो। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू। पारुल जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए मैम। मुझे ये पूछना है, जैसे अभी आपने सारिका जी से पूछा तो उनका जो डे आउट उन्होंने बताया कि वो 9:30 बजे सो जाती हैं, सुबह 4:30 बजे उठ जाती हैं, लेकिन जो लोग की बिल्कुल ही लाइफ पूरा जो डे आउट है वो पूरा, मैंने टाइमिंग नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने वो कितने बजे सोती है और कितने बजे उठती है, मैंने उससे ज्यादा कितने घंटे आप सोती हो और जब आप सोते हो तो अच्छी नींद आती है कि नहीं, मैंने वो क्वालिटी ऑफ स्लीप पूछा, टाइम ऑफ स्लीप नहीं पूछा, मैंने उनका क्वालिटी ऑफ स्लीप पूछा। कुछ लोग अगर 5 घंटे भी सोते हैं ना तो एकदम घोड़े बेच के सोते हैं। अगर कुछ लोग हैं तो अगर वो 12 घंटे भी सोते हैं तो हर 2 घंटे में वो उठते हैं। ओके जी मैम, ऐसा होता है, लेकिन अब लाइफ पूरी डिसअरेंज्ड हो कि ना सोने का टाइम है ना उठने का टाइम है, तो ऑब्वियसली वो डिसऑर्डर हो गया ना, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया ना वो। यस मैम। ओके जी, ओके मैम।
यस मोनिका जी। हेलो मैम। हेलो। मुझे अग्नि तो समझ में आया, बट मुझे कोष्टक समझ में नहीं आया। कोष्ट आप कोष्ट ओके, कोष्ट 3 टाइप्स ऑफ कोष्ट रहते हैं। ओके, दिस इज अगेन अ डिफरेंट टॉपिक। आई डोंट नो, आई व्हाट आई डू इज आई सेंड अ स्मॉल राइट अप अबाउट दैट। या ओके फाइन। या आदित्य जी। मैम आपने जो बोला, जो सारिका जी का अग्नि मंद हो गया है, तो अगर हम लोग को वेट लॉस करना होगा या मैंने, तो इस हिसाब से हम लोग को तो कैलोरी मेंटेन करके खाना पड़ता है। तो इस हिसाब से तो अगर किसी को मसल बिल्ड करना पड़ेगा तो प्रोटीन बढ़ाना पड़ता है। तो इस तो हिसाब से प्रोटीन कैसे के मैनेज साथ आप करेंगे? प्रोटीन के साथ आप उनका अग्नि पे भी बहुत तो ध्यान दो ना। उनका अग्नि आपके क्लासेस में हुआ है ना, अग्नि अगर आपकी मंद हो रही है तो उसको आप कैसे स्पाइसेस से, कैसे फूड से आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, ये बोला गया है ना आपके क्लासेस में। तो आप वो चीज करो ना। ओके ओके। दीप्ति जी। यस मैम। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे को आपका ये टॉपिक समझ आ गया, तो बेसिकली हमें देखनी है प्रकृति, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना है और अग्नि को तीक्ष्ण या मंद करने की कोशिश करनी है जी। यही करना है ना मैम हमको? मंद नहीं करना है हमको। अग्नि नहीं, जिसकी को बहुत उसके ज्यादा तीक्ष्ण है। नहीं, तीक्ष्ण अग्नि तो नेचुरली हो रहेगा ना, उसको हम लोग मेंटेन करना है हमको। उनका वो प्रकृति है, जैसे कि सारिका जी का जो है तीक्ष्ण अग्नि है, अगर वो मेंटेन नहीं कर रही है तो उनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं अभी। ओके, तो यानी कि हमको उनको उनका जो प्राकृत अग्नि रहता है उसको हम लोगों को मेंटेन करना है। विषम है या फिर मंद है तो उसको थोड़ा सा बढ़ाना है। ओके, तो ट्रीटमेंट हमें मैम प्रकृति के अकॉर्डिंग करना है और अग्नि को मेंटेन करना है। जी 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 जी। ओके, थैंक यू। अक्षय जी, लोअर पार्ट भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं पूरा एसेस करते बैठूंगी तो मेरे को मिनिमम 1.5 घंटा टाइम लगेगा। पूरे बॉडी का हर पार्ट को मैं अगर एसेस करते रहूंगी तो पूरे 1.5 घंटा मिनिमम लगता है। मैं जब किसी का प्रकृति एसेस करती हूँ तो आई नीड मिनिमम 1 आवर, 1.5 आवर, ओके, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। सो यहाँ पे हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, सो आई जस्ट गिव यू एन बेसिक idea. Dominic ji, my name is Poonam, Dr. Poonam. दीप्ति जी का हो गया है। सोनल जी, quickly, we have so many questions still. मैम Yeah. मैम जैसे सारिका जी का आपने प्रकृति अभी हमने देखा, तो हम कह सकते हैं कि उनका कफ डोमिनेंट है एंड पित्त प्रीडोमिनेंट है। हाँ, करेक्ट। ओके ओके। एंड मैम जैसे उनका अग्नि है, पित्त है, तो उन्हें प्रॉपर फूड लेना है। अगर आपका अग्नि अच्छा है तो आपको प्रॉपर डाइट लेना चाहिए ना, लाइक हर 2-3 आवर्स बाद। जैसे वो कम फूड ले रही हैं अपनी डाइट से, जो उनको जरूरत है उससे अगर वो कम ले रही हैं तो जितना वो ले सकते हैं उतना फूड हमें देना चाहिए। अगर वेट लॉस भी अगर हम कर रहे हैं तो लाइक कार्बोहाइड्रेट कम करके या उस तरह से जो भी मैनेज करके, लेकिन फूड हमें प्रॉपर देना है यहाँ पर। अगर अग्नि तीव्र है, पित्त है। इलेवन थर्टी का जो क्लास है, 11:30 के जो क्लास है मेरे बैच के, अभी जो क्लास होने वाला है, वो सारे अपने हाथ लोअर कर लो और यू आर गोइंग टू, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस इन द क्लास। वी हैव जस्ट 4 minutes, प्लीज लोअर योर हैंड्स। दिलीप खोट जी, दिलीप खोट जी।
I can't hear you. Can't hear you. आपकी आवाज नहीं आ रही है. आपकी आवाज नहीं आ रही है. Not audible. आवाज नहीं आ रही है. Okay, I have a class, next class. It was supposed to be 1 hour class. Now it has gone to 1.5 hour. Okay, all your on spot. Okay. Okay, all your questions, जो भी अभी, because I have next class, I can't further delay the class. जो भी आपके questions है, please send it to the coordinator. And I will surely send you the answers for that. Yeah, thank you so much. I know there were a lot of different students here, but thank you for attending the class, listening. And if you have any doubts, please send it to the coordinator. I will answer them. Yeah, thank you so much. Bye. Bye-bye.